Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question which have been specifically curated from today's Hindu newspaper as well as the Indian Express. So without wasting any time, let's look at the question from today. So the first question is, which of the following is not a disputing party to the Kaveri water dispute? So all of the question which we are going to discuss today have been discussed in the Hindu news analysis of today or the yesterday years. So which of the following is not a disputing party? So of the four states which have been mentioned, Telangana is not a disputing party to the Kaveri water dispute. Moving on, the controversial Shah Bano case which provided maintenance to Muslim women was decided in which year? So it was decided in the year 1985. So answer was second is going to be B, 1985. थर्ड क्वेश्चन, विच फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू स्टेट्स? सो सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किस पर्टिकुलर फाइनेंस कमीशन ने बात करी थी? सो पहला फाइनेंस कमीशन जिसने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करी थी वो था फिफ्थ फाइनेंस कमीशन. सो इफ यू नो दिस आंसर कि कौन सा फाइनेंस कमीशन था जिसने रिकमेंड करा था कि अब हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को बंद करने देना चाहिए, उसके अलावा उसने जो स्टेट का शेयर था टैक्स के अंदर में वो 32% से 42% इंक्रीज कर दिया था. तो अगर वो फाइनेंस कमीशन आपको पता है तो आप उसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स के अंदर में मेंशन कर सकते हो, या सिंपली आप से मैं ये पूछ रहा हूं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किस पर्टिकुलर फाइनेंस कमीशन ने अबॉलिश किया था. यहां पे क्वेश्चन था कि किसने उसको रिकमेंड किया था, तो आंसर इज फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, रिकमेंडेड बाय फिफ्थ फाइनेंस कमीशन. और अबॉलिश किसने किया था वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है. Moving on, dengue or dengue is caused by which of the following breed of mosquito? So we discussed this also. It is caused by Aedes aegypti mosquito या Aedes breed का जो aegypti वाला mosquito होता है उससे cause होता है. So fourth का आंसर C हो जाएगा. Moving on, World Population Day is celebrated every year on. So World Population Day was just a day ago. It was July 11th on which we celebrated the World Population Day. Next, which is the first deep sea port of India? So currently अभी हमने अपना first deep sea port transshipment port को कंस्ट्रक्ट किया है जो आपका विजनजम में बनाया गया है. सो आंसर फॉर 6 इज गोइंग टू बी डी. मूविंग ऑन, विच कंट्री हैज होस्टेड द बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर मीट 2024? सो इस बार हमने बिम्स्टेक को आज डिटेल में डिस्कस करा, तो उसके बेसिस पे कई क्वेश्चन है बिम्स्टेक के. सो लेट्स सी आप उनको आंसर कर पाते हो नहीं. सो सेवेंथ का कि बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग किसने करी है, होस्ट किसने करी थी? सो इंडिया ने उसको होस्ट करा है, तो सेवेंथ का आंसर बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्ट द सेक्रेटरीट ऑफ बिम्स्टेक? ढाका में है, न्यू दिल्ली में है, काठमांडू में है, या इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट ही नहीं है जैसे G7 का नहीं होता है. सो रिमेंबर द सेक्रेटरीट ऑफ बिम्स्टेक इज इन ढाका इन बांग्लादेश. नेक्स्ट, अब मैंने आपसे पूछा भी था ये हिंदू एनालिसिस में आज कि सिटी कौन सी सिटी है जो सेक्रेटरीट होस्ट करता है सार्क का? सो क्या वो ढाका में ही है, वो न्यू दिल्ली में, काठमांडू में, या सार्क का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है बिकॉज इसका पाकिस्तान मेंबर है? सो आंसर इज कि सार्क का एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट है और वो काठमांडू नेपाल के अंदर है. Moving on to the next one, who is the current Secretary General of BIMSTEC? So this is also an important question. Reason being कि एक इंडियन इसको हेड कर रहे हैं and the person who is heading, who is the current Secretary General of BIMSTEC is Indramani Pandey. Moving on, which of the following country is not a signatory of 2020 Abraham Accord with Israel? So Israel के साथ कुछ countries ने Abraham Accord साइन करे हैं. Out of these four, 3 countries are signatories of Abraham Accord and one is not, and the country which is not a signatory of Abraham Accord is D, Lebanon. Moving on to the next question, who is the newly elected Secretary General of NATO to assume office in October 2024? So अभी नए NATO Secretary General के इलेक्शंस हुए थे एंड उसके अंदर में जो उनका लॉन्ग टर्म लास्ट 10 ईयर से जो आपका सेक्रेटरी जनरल था उसकी जगह कोई और सेक्रेटरी जनरल बना है. सो अभी तक जेन्स स्टोल्टनबर्ग वाज द करंट सेक्रेटरी जनरल एंड अब मार्क रूट इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल. सो आंसर फॉर 12 इज गोइंग टू बी डी. Moving on to the next question, which of the following rights is not granted to the same-sex couples in India? So it's a very recent judgment of the Supreme Court जिसके अंदर में they were asking for a particular right और सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर में वो राइट सेम सेक्स कपल्स को ग्रांट नहीं किया गया था, और जिस राइट की मैं बात कर रहा हूँ वो है राइट टू मैरिज. सो इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर क्या करा कि सेम सेक्स कपल को राइट टू मैरिज नहीं है, एक फंडामेंटल राइट नहीं है वो, इट्स ओनली अ स्टैट्यूटरी राइट. तो जब तक पार्लियामेंट उनको ये राइट नहीं देती है तब तक उस राइट को क्लेम नहीं कर सकते हैं. सो 13 का आंसर हो जाएगा राइट टू मैरी ए. Moving on to the next question, who is the current chairperson of the 16th Finance Commission? So currently जो Finance Commission हमने create करा है जो अगले 5 years के लिए टैक्स रिवोल्यूशन के बारे में बताएगा, उसका चेयरपर्सन कौन है? So current chairperson is D. अरविंद पानाग्रिया जो पहले नीति आयोग से रिलेटेड थे और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। सो 4 स्टेटमेंट है, 3 इसके अंदर ट्रू है और 1 इसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट है। सो हमने आज इसको डिस्कस भी करा कि फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस जो बी स्टेटमेंट है जहां पे फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को बाइंडिंग बताया हुआ है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा और इसके अंदर में आपसे एक नॉट ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछा गया है, तो 15th का आंसर बी हो जाएगा। मूविंग ऑन, दुरंत कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। सो आज इसका भी इसके अंदर न्यूज़पेपर में है, 133 एडिशन दुरंत कप का होने वाला है। सो दुरंत कप जो ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडिया और एशिया का और वर्ल्ड का 3rd ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। इट्स रिलेटेड टू फुटबॉल ऑब्वियसली। सो 16th का आंसर बी हो जाएगा। Moving on to the 17th question, which of the following state is going to present a separate green budget? So अभी presently राजस्थान गवर्नमेंट ने अपना बजट अनाउंस किया है, उसके बाद इन्होंने अनाउंस करा है कि नेक्स्ट ईयर से वो एक सेपरेट ग्रीन बजट प्रेजेंट करेंगे। सो आंसर फॉर 17th is going to be D. Moving on to the next question, in the event of the speaker's office falling vacant, who presides over the sessions of the Lok Sabha? So अगर स्पीकर का ऑफिस वेकेंट है या लेट्स से स्पीकर एब्सेंट है प्रोसीडिंग्स के अंदर से, सो उस सिचुएशन के अंदर में कौन सा पर्सन उनकी जगह पे उसको प्रिसाइड करेगा, लोकसभा को प्रिसाइड करेगा? सो आंसर इज डी, द डेप्यूटी स्पीकर। सो वेरी इंपॉर्टेंटली 17th लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस एम्प्टी था, वेकेंट था, बट फाइनली 18th लोकसभा के अंदर में हम डेप्यूटी स्पीकर प्रोबेबली देख पाएंगे। सो प्रेजेंटली इन द इवेंट ऑफ स्पीकर office or vacant office falling vacant, deputy speaker presides over the meeting. Moving on to the second last question, which of the following has joined the project Nexus to facilitate instant cross border retail payments? So इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट नेक्सस है जिसके अंदर में जो आपके इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है, जैसे आपका यूपीआई इंडिया के अंदर में और बाकियों के जो फास्ट पेमेंट सिस्टम्स होते हैं उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है, यानी अब आप क्रॉस कंट्री भी ट्रांजेक्शन कर पाओगे अंडर प्रोजेक्ट नेक्सस। और इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है आपके आरबीआई ने। सो आंसर फॉर 19th इज बी। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि एनपीसीआई भी इसमें इन्वॉल्व है या दोनों इन्वॉल्व है, इट इज only the RBI. Moving on to the last question for today, which country was visited by an Indian Prime Minister after a gap of 41 years? So India and Austria के relations के ऊपर पे Indian Express में explain section आया है। So 41 years के बाद Indian Prime Minister ने ऑस्ट्रिया को visit किया था, वियना में he went to Vienna and met the president of Austria also there, he met him also. So फाइनली आंसर 20 का मैंने आपको दे ही दिया है। सो 20th का आंसर कि इंडियन पीएम ने 41 इयर्स के बाद ऑस्ट्रिया को विजिट करा था। ओके स्टूडेंट, सो दीज वर द 20 जीके क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप कि आपने इसमें से कुछ लर्न करा होगा, अच्छे आपने फैक्ट्स इसमें से नोट डाउन कर लिए होंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप टू सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।